قوم کل ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے انتھک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کے ساتھ یوم پاکستان منا رہی ہے۔ موسم کی خرابی اور بارش کا امکان، پاکستان ڈے پریڈ کا شیڈول تبدیل، مسلح افواج کی پریڈ اب 25 مارچ کو ہوگی۔ ISPR ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی، 24 گھنٹے میں 3669 نئے کیسز رپورٹ، 20 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، اموات کی مجموعی تعداد 13,863، فعال کیسز کی تعداد 33,070۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس، ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں 5 دن تک محدود کرنے اور رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ ہوٹل اور ریستوران کے اندر کھانے پر پابندی، پارسل کی اجازت ہوگی۔ تمام قسم کے کھیلوں، ثقافتی پروگرامز اور مذہبی اجتماعات پر بھی پابندی۔ تعلیمی شعبے سے متعلق فیصلوں کا 24 مارچ کو جائزہ لیا جائے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ کا وزیر اعظم عمران خان کو خط، جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ عمران خان کی زیر قیادت پاکستان وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہوگا، چینی وزیر اعظم۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار جاری، متاثرہ افراد کی تعداد 12,39,00,000 تک جا پہنچی، 27,29,000 سے زائد ہلاک تھے۔ بھارت میں کورونا پھر بے قابو، ایک دن میں ریکارڈ 43,000 کیسز رپورٹ، کئی ملکوں میں جزوی اور مکمل لاک ڈاؤن۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب، صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ایئر چیف کو اعزاز دیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں سول و عسکری حکام کی شرکت۔ حکومت کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی، مریم نواز کرپشن کی وضاحت دینے کی بجائے آئینی ادارے پر چڑھائی کی دھمکی دے رہی ہیں، ترغیب دے رہی ہیں کہ پہلے لوٹ مار کرو اور پھر جتھے بنا کر اداروں پر حملے کرو۔ کسی کو قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے پرتشدد ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، شوپیاں میں 4 نوجوان شہید، قابض فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ کارروائی کے دوران 2 مکان بھی تباہ کر دیے گئے۔ بھارتی کسانوں کا مودی حکومت کے خلاف تادم مرگ تحریک جاری رکھنے کا اعلان، 26 مارچ کو پورا بھارت بند کرنے کی تیاریوں میں بھی تیزی، دلی، غازی پورہ اور سنگھو بارڈرز پر کاشتکاروں کے دھرنے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، انڈیکس میں 506 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 45,407 پر بند ہوا۔ کہیں رم جھم تو کہیں تیز بارش، اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، بالائی سندھ اور گلگت بلتستان میں بارش، سردی میں اضافہ۔ دورہ جنوبی افریقہ کی تیاری، لاہور میں انٹرا اسکواڈ میچ، شاداب 11 کی بابر اعظم 11 کے خلاف کامیابی، قومی اسکواڈ میں شامل 34 ارکان کے کووڈ ٹیسٹ منفی آ گئے۔ 3 ون ڈے اور 4 T20 میچز کے لیے ٹیم 26 مارچ کو جوہانسبرگ کے لیے روانہ ہوگی۔ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بڑا اقدام، کوئٹہ میں 17 سال بعد نیشنل ٹورنامنٹ کا انعقاد، چیف منسٹر بلوچستان کی
हॉकी गोल्ड कप के आगाज से कल कोयटा में ये मैचेस होंगे। सूबाई और डिपार्टमेंटल सतह पर मुकाबले होंगे, जबकि फाइनल 2 अप्रैल को खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं आसमा इकबाल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इन खबरों की तफसील जानिएगा एक ब्रेक के बाद। पहाड़ी खित्ते जो दुनिया के जंगलात का 5वां हिस्सा है, आलमी सतह पर बेहद अहमियत रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के निहायती हसास पहाड़ी सिलसिले को मौसमियाती तब्दीली की वजह से खतरात दरपेश हैं। कुदरती जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ देकर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का शजरकारी मुहिम के तहत गिलगित बल्तिस्तान में 17 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आइंदा नस्लों के लिए इन पहाड़ी वादियों की हरियाली को महफूज रखने में हमारा साथ दें। नाज़रीन, यौम पाकिस्तान कल मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इस अज़्म की तजदीद की जाएगी कि तहरीक पाकिस्तान के जज्बे के साथ तामीर पाकिस्तान का अमल जारी रहेगा। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, जिसने बरसगीर के मुसलमानों में नया जज्बा पैदा किया और 7 साल की जिदोजहद के बाद आज़ाद वतन की मंजिल हासिल हुई। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्क भर में कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें इस दिन की अहमियत को उजागर किया जाएगा। मौसम की खराबी की वजह से मुसल्लह अफवाज की परेड कल की बजाय 25 मार्च को होगी। ISPR के मुताबिक आइंदा 2 दिन के दौरान बारिश का इम्कान है। यौम पाकिस्तान परेड 25 मार्च को पहले से जारी शुदा प्रोग्राम और औकात कार के मुताबिक होगी। कोरोना सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना की तीसरी लहर के बायस मुल्क भर में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बताए गए कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन की भी हिदायत की गई है। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में इंतहाई खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 3 दिनों में कोरोना केसों में 8% इजाफा देखने में आया, जिसके पेश नजर तमाम अजला और शहरों में पहले से नाफिज SOPs को जारी रखने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना से मुतासिर 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 3669 नए केस रिपोर्ट हुए। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में फाल केसेस की तादाद 33,070 है और अब तक मजमूई तौर पर 13,863 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। इस्लामाबाद में एक्टिव केसेस की तादाद 5,905, पंजाब में 15,360, सिंध में 5,081, खैबर पख्तूनख्वा में 5,500, बलोचिस्तान में 198, आजाद कश्मीर में 1,013 और गिलगित बल्तिस्तान में 13 अफराद इस वबा में मुब्तला हुए हैं। NCOC के इजलास में फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। हफ्ता और इतवार को मार्केटें और रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद, जबकि अशियाए खुर्दोनोश की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स को खोलने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर टेक अवे सर्विस की इजाजत होगी। 300 से ज्यादा अफराद के इज्तिमात पर सख्त पाबंदी होगी। सिनेमा घर और मजहबी इबादत गाहों समेत इंडोर मजहबी, सकाफती, मौसीकी या किसी भी किस्म के मुतफरक प्रोग्राम पर सख्त पाबंदी आयद होगी। इसी तरह खेलों, सकाफती मेलों, मजहबी त्योहारों समेत दीगर प्रोग्रामों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। रात 10 बजे तक खुले मकामात पर 300 मेहमानों तक शादी के प्रोग्राम मुनक्कद करने की इजाजत होगी। अलबत्ता प्रोग्राम का दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पर मुहित होगा। तमाम इक़दामात का इतलाक
फौरी तौर पर होगा, जो 11 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगे। 10 मार्च से बंद तालीमी इदारों को दोबारा खोलने से मुतालिक फैसला 24 मार्च को NCOC के इजलास में होगा, जबकि 7 अप्रैल को होने वाले इजलास में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। कोरोना वबा के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। इस हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना की वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है। मैंने भी अपने बारी पे आज वैक्सीन लगाई है। 3 दिन पहले मेरी बारी आई थी, लेकिन क्योंकि ये वबा पाकिस्तान में दोबारा बहुत शिद्दत से फैल रही है और इसके पाकिस्तान में आम आदमी पे बहुत असरात हो सकते हैं, वो कि हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं वैक्सीनेशन के, लेकिन हर आदमी जाए जिसका नंबर आ रहा है और जाके वैक्सीन लगवाए और सेहतयाब हो और अल्लाह ताला सारे मुल्क से इस वैक्सीनेशन इस कोविड की वबा को खत्म करे। और नाज़रीन, चीन ने कोरोना वैक्सीन की मजीद खुराकें तोहफे के तौर पर पाकिस्तान भिजवाने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में कोरोना सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोरोना चैलेंज में चीन ने पाकिस्तान से भरपूर ताउन किया। वबा के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में शहरियों को कोरोना से महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन का जामे मंसूबा तश्कील दिया है। वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए 100 से ज़ायद मुमालिक चीन से राब्ता कर चुके हैं। पाकिस्तान के साथ मिसाली दोस्ती को निभाते हुए तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की मतलूबा खुराकें फराहम करेंगे। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह रवाबित का तसलसल जारी रखने पर इत्तफाक किया। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक कोरोना वबा से मुतासिर होने वाले 12 करोड़ 40 लाख अफराद में से 27 लाख 30 लुकमाए अजल बन चुके हैं, ताहम 9 करोड़ 99 लाख सेहतयाब हो गए। अमेरिका में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 3 करोड़ 5 लाख से जायद, जबकि हलाकतों की तादाद 5,55,000 से बढ़ गई है। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 2,94,000 और मुतासिर अफराद की तादाद 1 करोड़ 20 लाख है। मैक्सिको में 1,98,000 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। भारत में कोरोना से 1,60,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 1 करोड़ 17,05,000 के करीब अफराद मुतासर हैं। बरतानिया में 1,26,000 और इटली में 1,05,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की नई लहर के बाद यूरोप और जनूबी अमेरिका के बाद ममालिक में पाबंदियां दोबारा सख्त कर दी गई हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वैक्सीन पर एतराज को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो कल खुद ये वैक्सीन लेंगे। और नाज़रीन, चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत अरसाल किया है। ली कीचियांग ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वबा पर काबू पा लेगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर पैगामात अरसाल किए हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। मोहम्मद बिन सलमान ने भी अपने अलहदा पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी और मुस्तकिल सेहत और तंदुरुस्ती की ख्वाहिश का इजहार किया है। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सही मायनों में आज़ाद, लिबरल और अमीर इंसान वो है जिसकी कीमत नहीं होती। ट्वीट के जरिए बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना रूमी के कौल का हवाला देते हुए कहा कि आज़ाद इंसान मादी कीमतों से बालातर होता है। वज़ीर आज़म ने ये अहम बयान नौजवानों के नाम करते हुए अजीम शायर और फलसफी मौलाना रूमी के इस कौल का हवाला दिया, जिसमें मौलाना रूमी कहते हैं कि इंसान अपने ज़मीर को किसी चीज़ के बदले ना बेचे। रूह वाहिद चीज है जो इंसान के साथ दुनिया में आती है और साथ वापस चली जाती है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी से पेशावर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्री के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। सदर ममलिकत ने वफ़द को बताया कि हुकूमत मुल्क की कारोबारी बरादरी और सनती शोबे की सहूलत के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। कारोबारी और कमजोर तबकात के लिए 1.2 खरब रुपए के तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि स्मॉल ट्रेडर्स और इंडस्ट्री ने कारोबारी सरगर्मियों से मुल्क की खुशहाली में अहम किरदार अदा किया है।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि कारोबार दोस्त पॉलिसियों से कारोबार करने में आसानी की आलमी दर्जाबंदी में नुमाया बेहतरी आई है। वक्त ने सदर मुमलिकत को अपने मसाइल से आगाह किया और हुकूमती इकदाम की तारीफ की। आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को उनकी खिदमत के इतराफ में निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। एजाज देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने पाक फजाइया में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं। इससे पहले उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें 2019 में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को पाक फजाइया की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फजाइया का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स में होता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फजाइया के सरबराह के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की अहल क़यादत में मजीद तरक्की हासिल करेगी। और बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में पेशावराना उमूर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सलामती के शोबे में ताउन मजीद मजबूत करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मौजूदा आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशावराना मयार और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि हम कानून और इदारों का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि किसी को कानून की गिरफ्त से बचने के लिए पुरतशद्दुद हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, रिजवान आरिफ बताएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मरीम नवाज का यूथ कन्वेंशन खिताब में लबो लहजा मायूस कुन था। मरीम नवाज नैब के सामने अपनी पेशी पर आईने इदारे को दबाव में लाना चाहती हैं। 26 मार्च को जो उनको नैब में पेश होने का हुक्म दिया गया है, उसमें वो अपने उन कारकुनान को इश्तियाल दिला रही थी। कलेवरी से लेकर और उन पे जो 20 मुकदमात हैं, जिसमें कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी उनकी कोई जायदाद नहीं, वो धमकियां दे रही हैं। नैब पे चढ़ाई करेंगी, लश्करकशी करेंगी और उनको अपना जो सियासी प्लेटफॉर्म है वो अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगी और तरगीब भी दे रही हैं पार्टी कारकुनान को और दूसरे लोगों को, ताकि वो अपनी जो एक मॉब है जिसको आप जत्थे कह सकते हैं, उसकी आड़ में कानून से फरार हासिल करे और कानून को डराए धमकाए, जिसकी बुनियाद पर उनके जो केसेस हैं उनको डिसाइड करने वाले हैं वो दबाव में या डर में अपने फैसले दें। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मजहब और दीन को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान अमन व अमान का मसला पैदा करना चाहते हैं जो नहीं होने देंगे। कल्चर ये वो तरीक़ाकार जिसमें कि सियासत को एक कारोबार बना दिया गया है और कारोबार भी गैर कानूनी कारोबार, जिसमें कि आप अपने दौरे हुकूमत में लैंड माफिया की आप सरपरस्ती करें, जखीरा अंदोजों की आप सरपरस्ती करें, हर वो क्रिमिनल तबके की जो कि कानून की हुक्मरानी पे यकीन नहीं रखता, ये उस कल्चर की तर्जुमानी कर रही हैं जिसमें कि एक आम क्रिमिनल माइंडसेट के लोग यही सोचेंगे कि बेहतरीन तरीका है यही कि किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करो और जब वक्त आए कानून की गिरफ्त में आने का तो उस वक्त अपनी सियासत को और अपनी सियासी पार्टी के जत्थों को लेकर आप जजेस पे चले जाएं, आप इदारों पे चढ़ाई कर दें। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि किसी को कानून की गिरफ्त से बचने के लिए पुरतशद्दुद हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अब बात करेंगे वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की, जिनका कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि तालीमी इदारों की रौनकें बहाल हों। कोरोना सूरत हाल में तालीमी इदारों को खोलने से मुतालिक 24 मार्च को फैसला किया जाएगा।
लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में तदरीस और ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत फर्क है। कोरोना के बाद तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला बहुत मुश्किल था, ताहम हमें अपने बच्चों की सेहत सबसे ज्यादा अजीज है। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि मुल्क भर में यकसा तालीमी निसाब का निफाज अहम इक़दाम है। इस मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन के वफ़द ने मियां रज़ा रहमान की सरबराही में मुलाकात की और कोरोना सूरत हाल के तनाजुर में उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में ज़रूरत के तहत ही स्मार्ट लॉकडाउन ही करेंगे। उन्होंने वफ़द की तजावीज़ को सराहते हुए हमदर्दाना गौर की यकीन दहानी कराई। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सदारत में होने वाले इजलास में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस और कोरोना वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल खतरनाक है। हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं। इस सिलसिले में आवाम का ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स के साथ बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल तेज कर दिया गया है। शहरियों की सहूलत के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने बताया कि दिसंबर तक सूबे के हर शहरी को बिला तफरीक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कर दी जाएगी। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना शरई तौर पर जायज़ है। अवाम इस हवाले से प्रोपेगेंडे को रद्द करें। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी शरीयत में खुद तकलीफ से बचना और दूसरों को बचाने का हुक्म है। सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के उलमा कराम के फतवे के मुताबिक रोजादार भी वैक्सीन लगवा सकता है। ताहिर मोहम्मद अशरफी ने कहा कि अवाम मसाजिद में इबादत के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। पाकिस्तान जिस सोच के तहत मार्ज़े वजूद में आया वो दो कौमी नजरिया था। आज आज़ाद फजा में सांस लेने वाले अवाम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों और दूर अंदेशी का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इसी पे आपको दिखाएंगे कराची से नौरी नासिफ की रिपोर्ट। आज़ादी, खुद मुख्तारी, अलहदा तशख़्ख़ुस और इस्लामी उसूलों की पासदारी बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए किसी ख्वाब से कम न थी। जुल्म और जबर के साए में सांस लेते, अपने हकूक सल्ब होते देखते मुसलमानों के लिए दो कौमी नजरिया उम्मीद की किरण बनकर उभरा। लाहौर के मंटो पार्क में दो कौमी नजरिए और आज़ाद इस्लामी रियासत की बुनियाद पर करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी ने बरसगीर के मुसलमानों के एहसासात और जज्बात को तक़वियत बख्शी। 1937 के इंतखाबात के नतीजे में कांग्रेस की 8 सूबों में हुकूमतें कायम हो गई हिंदुस्तान के। वो हुकूमतें जो कांग्रेस की कायम हुई, उन्होंने मुसलमानों के साथ बेपनाह जुल्म किया। कायद-ए-आज़म बार बार अपनी तकरीरों में ये बात कहते थे, अगर हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ और मुसलमानों को उनका अलहदा मुल्क नहीं मिला तो यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू राज हो जाएगा, जैसे कि वो 7 सूबों की हुकूमतों ने हिंदू राज कायम कर दिया। ये इतने हम करीब आ चुके थे 39 से 40 तक कि उसके तौर पे जहन बनता चला गया कि नहीं, जब तक मुसलमान अलहदा नहीं होंगे, अपना अलहदा वतन नहीं हासिल कर लेंगे, इस बरसगीर में वो चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तक़सीम हिंद के बाद कई दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन भारतीय हुक्मरान की मुतासिब सोच और तफसीह पसंदाना अज़ाइम आज भी वैसे ही हैं। इंडिया की कोशिश है कि वो अपना जो नजरिया हिंदुत्व का है उसको इस खित्ते में असर्ट करे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बालादस्ती चाह रहे हैं, और ये एक फाशिस्ट नजरिए की खुसूसियत होती है कि वो इंतहा पसंदी और तशद्दुद पर अपनी कौम की बरतरी पे वो यकीन रखते हैं। दो कौमी नजरिया और अलहदा इस्लामी रियासत के हसूल के मकासद पर अगर आज रोशनी डाली जाए तो ये वो हिकमत अमली थी जिससे हमारे बुजुर्गों की दूरअंदेशी वक्त गुजरने के साथ दुरुस्त साबित हुई है। नौरी नासिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। बात करेंगे भारत के गैर कानूनी जिले तसल्लुत जम्मू और कश्मीर की, जहां फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान शोपियां में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकारों ने इन नौजवानों को मानी हॉल के इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान जाली मुकाबले में शहीद किया।
जारी फोर्सेज ने इस दौरान 2 मकानात को भी तबाह कर दिया। भारतीय फोर्सेज की जालमाना कार्रवाई में मानी हॉल और दूसरे इलाकों पर जबरदस्त मुजाहरे किए गए। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग का वक्त और दीगर हुर्रियत कारकुन शहदा के अहल खाना से हमदर्दी और इजहार यकजहती के लिए शुपैया में उनके घर गए। हुर्रियत रहनुमाओं शबीर अहमद डार, बिलाल सिद्दीकी, अब्दुल समद इनकलाबी और हक़ खुद इरादियत फोरम ने अपने बयानात में शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी बेमिसाल कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। यौम पाकिस्तान के मौके पर श्रीनगर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज दूसरे रोज भी पाकिस्तानी परचम लहराए गए, जबकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन अलायंस और अहलियान जम्मू कश्मीर की तरफ से पोस्टर्स चिस्पा किए गए। श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मजलिस शूरा के इजलास में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए मुल्क के इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की गई। इजलास की सदारत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वॉइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने की। कश्मीर तहरीक ख़वातीन की तर्जुमान राफिया रसूल, जनरल सेक्रेटरी शमीम शाल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद सफ़ी, अल्ताफ वानी, सैयद फैज़ नक्शबंदी और जाहिद अशरफ ने भी अपने बयानात में यौम पाकिस्तान पर हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी है। जम्मू में मुसलमानों, सिखों और दलितों के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा है कि बीजेपी की क़यादत में भारतीय हुकूमत ने भारत में अक़लियतों के खिलाफ खौफ और दहशत का माहौल कायम कर रखा है। इजलास की सदारत RK क्लिस्टोत्रा ने की और इसमें महेंद्र तार सिंह, मीर शाहिद सलीम, नरेंद्र सिंह खालसा और दीगर ने शिरकत की। नाज़रीन, मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ भारतीय किसानों की तहरीक जारी है और दिल्ली के इर्द गिर्द चकरी, गाजीपुरा और सिंघू बॉर्डर्स पर बड़ी तादाद में काश्तकार मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टकेत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया है और उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान इस बात को भी समझ चुके हैं कि हुकूमत ज़राअत के शोबे को सनअतकारों के हवाले करने का मंसूबा बना रही है। राकेश टकेत ने कहा कि काले कवानीन की मनसूखी तक मुल्क भर में मुजाहरे होते रहेंगे। दूसरी जानिब दिल्ली और हरियाणा को मिलाने वाला टिकरी और सिंघू बॉर्डर किसानों के एहतजाज के बाद मुकम्मल तौर पर बंद है और ट्रैफिक की रवानी तहत्तुल का शिकार है। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद नियाज़ी ने आमद पर उनका इस्तकबाल किया। सरदार मसूद खान और नेवल चीफ के दरमियान मुलाकात में मसला कश्मीर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। एडमिरल अमजद खान नियाज़ी ने इस अज़्म का इयादा किया कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगी। सदर आज़ाद कश्मीर ने कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत के सिलसिले में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के अज़्म को सराहा। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सादिक संजरानी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को इंतखाब पर मुबारकबाद भी दी। नाज़रीन, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस काउंसिल का पहला इजलास वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम की कन्वीनरशिप में इस्लामाबाद में हुआ। शुरा ने तमाम सियासी जमातों के माबैन खुशगवार ताल्लुकात के लिए काउंसिल के क़याम को अहसन कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐवान की कार्रवाई को अहसन अंदाज में अंजाम देने और मुल्क को चैलेंज से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों के माबैन हम आहंगी वक्त की अहम जरूरत है। अरकान ने कहा कि पार्लिमानी उसूलों को बरकरार रखने में पार्लियामेंट का किरदार बहुत अहम है और इसमें इस मकार में इजाफा होगा। कुछ बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स में 506 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसके बारे में आपको दिखाएंगे हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बदस्तूर बरकरार है, जबकि आज कारोबारी दिन के आगाज से ही 100 इंडेक्स ने बुलंद सतह पर ट्रेड करना शुरू किया। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद को 7% पर बरकरार रखने के फैसले को सरमायाकारों ने हुकूमत की बेहतरीन मुआशी हिकमत अमली करार दिया है, जबकि दूसरी जानिब रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर्स की आमद का सिलसिला भी मुतवातिर जारी है। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 505 पॉइंट्स प्लस के साथ बंद हुई। उसकी वजह है इंटरेस्ट रेट्स में स्टेबिलिटी, रुपए की कदर में इजाफा और खास तौर पर रोशन डिजिटल पाकिस्तान की वजह से दिन ब दिन हमारे रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है। बाजार हिस्से में आज 100 इंडेक्स
कारोबार के अख्ताम पर 45,407 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 1,66,384 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 22 अरब 9 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हजम 44 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। 151 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 193 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 17 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और वफाकी वजीर बराए रेलवे आजम खान स्वाति कहते हैं कि इदारे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे की 1 इंच जमीन भी नहीं बेची जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि पेशावर से तौरकम ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। मुसाफिर ट्रेनों के साथ माल बरदार ट्रेनों पर भी तवज्जो दी जा रही है। रेलवे दुनिया की रेलवे के साथ जो है वो एक ही पैरिटी के ऊपर जो है वो खड़ी हो सके। फ्रेट 30 अरब का मैंने इनको हदफ दिया है 3 महीने के अंदर। 2000 वैगने ब्रांड न्यू आपके फर्नेस ऑयल को अटक रिफाइनरी से जो है मुल्तान ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। और इससे 3 अरब का हमारा फायदा हो। मेरे अच्छे अफसर, मेरे अच्छे मजदूर मेरी आंखों के तारे हैं, लेकिन करप्ट अनासर के लिए, स्याह बेड़ों के लिए जो है वो रेलवे अब इंशाल्लाह ताला उसके दरवाजे बंद हो रहे हैं। टिकटों का डिजिटल प्रोग्राम होगा। वफाकी वजीर दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल से मिस्र के सफीर तारिक दाहरोफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत, दिफा के शोबों में ताउन और सनती इश्तराक बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी से उनकी नाअहली के लिए दायर दरखास्तों पर जवाब तलब कर लिया है। केस की आइंदा समाअत 5 अप्रैल को होगी। तफसील जानते हैं सदफ अफजल से। इलेक्शन कमीशन में रुकन पंजाब इल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली फरूख हबीब और मलिका बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरख्वास्तें कमीशन में जमा करवा दी हैं। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी की जानिब से वकला कमीशन में पेश हुए। तहरीक इंसाफ की मलिका बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि दरख्वास्त में वीडियो में मौजूद दोनों MNAs को कमीशन की हिदायत पर फरीक बनाया गया है। कमीशन समझता है कि कोई रुकन असम्बली मुलव्विस है तो उसके खिलाफ तहकीकात करे। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी के वकला ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। केस की समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी फरूख हबीब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमेशा ओपन बैलेट के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि अली हैदर गिलानी ने खुद वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो का एतराफ किया है। जिस अंदाज से वोट जाया करने का तरीकाकार बताया गया उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं और अली हैदर गिलानी का उस वीडियो के अंदर मौजूद होने का इतराफ़े जुर्म भी मौजूद है। इन्होंने खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया। इलेक्शन कमीशन में हमने अपनी अमेंडेड पिटीशन भी फाइल की है। इनके वकला वो टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं, लंबी लंबी तारीखें मांगी जा रही हैं। हम आपको तारीखों के पीछे नहीं छुपने देंगे। PTI रहनुमा मलिका बुखारी ने कहा कि हम पाकिस्तान की अवाम का केस लेकर आए हैं। ऐवान में करप्शन के जोर पर आने वाले कभी भी अवामी मफादात के फैसले नहीं कर सकते। साबिक नाअहल वजीर आजम जो तोशा खाना केस में नामजद हैं और उनके बेटे अली हैदर गिलानी जो खुद मेंबरान पार्लियामेंट हैं, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ जमीन फरोशी के अमल को आगे बढ़ाया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब जब ऐवाने बाला के अंदर ऐसे लोग आने की कोशिश करें जो जमीन फरोशी करते हैं तो हम उनके पार्लियामान में आने के अंदर रुकावट बने। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि जमीर फरोशों के खिलाफ हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सदारत में लाहौर में होने वाले इजलास में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया और वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को ट्रेन के स्टेशन के लिए बिजनेस प्लान तैयार करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि टिकटिंग के लिए सॉफ्टवेयर बर वक्त न खरीदने और तनसीब में ताखीर की इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के किराए, बिजनेस प्लान और दीगर उमूर तय करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दी जाए। उनका कहना था कि स्टेशन पर कमर्शियल सरगर्मियों को फरोग देने और ऑपरेशनल अखराजात को कम करने के लिए जामे प्लान तैयार किया जाए।
बलूचिस्तान काबीना की बात करेंगे, जिसने गंदम की खरीदारी से मुतालिक पॉलिसी देते हुए रवां साल 1 लाख टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया है। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुतादिद उमूर ज़ेर गौर आए। इजलास में सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के लिए सब कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला जाम कमाल खान ने कहा कि कम तरक्की याफ्ता और पसमानदा इलाकों के मसाइल उजागर करने और उनको हल करने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में कराची में इजलास हुआ, जिसमें दरियाए सिंध के बाएं किनारे पर चावल की काश्त पर पाबंदी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि बाएं किनारे पर चावल की काश्त की वजह से कपास और गन्ने की फसल की पैदावार मुतासिर होने के साथ साथ इलाके में ज़रूरी जमीन को भी नुकसान हो रहा है, इसलिए चावल की काश्त पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। और नाज़रीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी जिंदगी है, लेकिन इसे ज़ाया होने से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। आलमी यौम आब पर देखते हैं राना इफ्तिखार अहमद की ये रिपोर्ट। हर साल 22 मार्च को पानी का आलमी दिन मनाया जाता है। रवां साल पानी का आलमी दिन आबी ज़खायर के बारे में शऊर उजागर करने और अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के 6ठे हदफ के तहत 2030 तक पानी और सैनिटेशन सबके लिए ताज़ा पानी और इसकी अहमियत के बारे में आगाही के इन्वान के तहत मनाया जा रहा है। पानी हमारे घरों, खुराक, सेहत, तालीम और मईशत के तमाम शोबों समेत कुदरती माहौल की सालमियत के लिए बेहद जरूरी है। लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि पानी को बचाना है। पानी जितना हमारे मुल्क में अवेलेबल है नैयर, हम उसको स्टोर कम करते रहें। कॉर्पोरेट लेवल पे और डिपार्टमेंट लेवल पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि जितनी हमारी पॉलिसीज़ हैं, जितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्लान्स हैं, वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हो। तो इस वक्त अच्छी खबर ये है कि हमारी जो स्टोरेज है इंशाल्लाह अगले 7-8 सालों में ऑलमोस्ट 90% बढ़ जाएगी। पानी जिसके बगैर जिंदगी बेमायनी है, इसकी किल्लत से दुनिया भर की मईशतें बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। पाकिस्तान की जो टॉप प्रायोरिटी है वो पानी के जो ज़खायर की और उनको स्टोर करने के लिए गुंजाइश है, उसमें इजाफा की जरूरत है। डैम भी बनाना है और फिर इसको प्रॉपरली एफिशिएंटली इस्तेमाल भी करना है। हमें अपना जो इस्तेमाल के तरीके हैं उनको भी ठीक करना है। कोई लाइफ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती पानी के बगैर। इंसानी जिंदगी का दारोमदार भी पानी के ऊपर है और पाकिस्तान की इकॉनमी का जो दारोमदार है वो भी। आदत बनी हुई है कि पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है वो एफिशिएंट उसका यूज करना है। पूरे अर्ज पर जिंदगी और मीशत के तमाम शोबों का पहिया पानी का मरहून मिन्नत है। कुदरत ने पाकिस्तान को पानी की दौलत से मालामाल किया है। 60 की दहाई में पानी जखीरा करने के लिए वारसक, मंगला और तरबेला जैसे बड़े डैम्स बनाए गए, लेकिन इसके बाद बड़े डैमों की तामीर पर तवज्जो नहीं दी गई। इस वक्त पाकिस्तान में फीकस पानी की दस्तयाबी 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम रह गई है, जो 1947 में 5300 क्यूबिक मीटर थी। पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। आइए आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए नए आबी ज़खायर तामीर करके इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि कानून किसी फर्द या शख्सियात के ताबे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पीडीएम अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मरियम नवाज का नौजवानों को आईनी इदारों के खिलाफ उकसाना काबिल मजम्मत है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीडीएम को कुंद छुरी से पीपल्स पार्टी ने जिस बेदर्दी से ज़बह किया है, तो उसके बाद तो वो इस वक्त तड़प रही है। जाली राजकुमारी की और मौलाना की जो तड़प है वो खुद इस बात की काशी कर रही है। ये फिल्मी स्टाइल की बढ़कें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, सियासत आपके बस का रोग नहीं है। सियासत के अंदर अब नून और शीन जो आपस में मद्दे मुकाबल आ गई हैं, वहां आपकी दाल गलती मुझे नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, बात करेंगे मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की, जिन्होंने इस्लामाबाद के G11 मरकज में फल और सब्जी फरोशों से मुलाकात की और उनके मसाइल मालूम किए। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि ठेले वालों की मुश्किलात से आगाह हैं, एहसास प्रोग्राम के तहत इनके मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहा कि CDA समेत मुख्तलिफ इदारों के ताउन से मनसूबे को अमली जामा पहनाएंगे।
मालाकंड में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ममलकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि अवाम ने अपोजिशन के ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। वजीर ममलकत ने कहा कि हुकूमत पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सेहत कार्ड के जरिए तमाम शहरियों को सेहत की मुफ्त सहूलतें फराहम की जा रही हैं। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई ने क्वेटा में बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की नौमंतखब काबीना के हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल यकीन रखती है। आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा कि सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की जाएगी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि साफ पानी की फराहमी के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबों पर काम का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तमाम इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। गवर्नर ने बताया कि कोरोना की शिद्दत में इजाफे की वजह से हम सबको हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना होगा। ऐसी सरगर्मियों से गुरेज करना होगा जिनसे वायरस में इजाफे का खदशा हो। सरवर फाउंडेशन की चेयरपर्सन बेगम परवीन सरवर ने कहा कि पंजाब के अलावा सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि आवाम हेपेटाइटिस और दीगर मौलिक बीमारियों से महफूज रह सकें। नाज़रीन, ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के माहिरीन ने फसलों और बागात की बेहतरीन पैदावार के लिए माहौल दोस्त कुदरती ज़राई अद्वियात और खाद के तजुर्बात मुकम्मल कर लिए हैं। जदीद साइंसी तरीक़ाकार से तैयार की गई कुदरती खाद और ज़राई अद्वियात तजुर्बाती बुनियादों पर किसानों को मुफ्त दस्तयाब है। ख्वाजा मोहम्मद कलीम की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फसलों और बागात की बेहतर पैदावार के लिए ज़राई खादों और अद्वियात का इस्तेमाल आम है। मुख्तलिफ केमिकल से तैयार की गई ज़राई खादें और अद्वियात जहां बेहतर पैदावार यकीनी बनाती हैं, वहीं ज़मीन की पैदावारी सलाहियत, माहौल और इंसानी सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब करती हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़मीन की बेहतरीन पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखने और इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए कुदरती खाद और अद्वियात का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। सिंथेटिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे नुकसानात हैं। अब हम आ रहे हैं स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन की तरफ, जिसको हम बायोपेस्टिसाइड भी कहेंगे, स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन भी कहेंगे। तो ये सेफ है, उससे हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी नहीं मरेंगे, उससे हमें जो है ना माहौल भी हमारा पोल्यूट नहीं होगा। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के माहिरीन फसलों की बेहतरीन पैदावार के हवाले से मुस्तकबिल के कौमी तकाज़ों को पूरा करने के लिए कोशां हैं। जामिया में कायम लेबॉरेटरीज में जदीद तरीन रुझानात के मुताबिक कुदरती खाद और ज़राई अद्वियात बनाई जा चुकी हैं। मकामी तौर पर तैयार की गई इस कुदरती खाद और ज़राई अद्वियात के नताइज बेहतरीन हैं। जो बायो फर्टिलाइजर है उसका जो हमारे पास मटेरियल होता है, ये बेसिकली हमारा ज़मीन के अंदर पाया जाता है। हम इसको ज़मीन से निकालते हैं, ज़मीन से निकालने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोबारा हम ज़मीन के अंदर डालते हैं। खुराक में खुद कफालत इंसानी सेहत और माहौल की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि सरमायादार तबका कुदरती खाद और अद्वियात की बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए इस शोबे में सरमायाकारी के लिए आगे आए। कुदरती तरीके से तैयार करदा खाद और कीड़े मार अद्वियात न सिर्फ आम कीड़े मार अद्वियात और खाद से सस्ती हैं, बल्कि इनके इस्तेमाल से फसलों की पैदावार में इजाफा भी यकीनी है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसी के बायस इस साल गंदम के अलावा सरसों की कीमत से भी किसान को बेपनाह फायदा हुआ है। इसी बारे में आपको दिखाते हैं नवाब अली शाह की रिपोर्ट। सिंध में हजारों एकड़ रकबे पर काश्त की जाने वाली सरसों से बड़ी मिकदार में मुल्क की खाने के तेल की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलती है और उसका भूसा जानवरों के खाने में इस्तेमाल होता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से किसानों को आसान शराइत पर कर्जे देने और सस्ते निर्खों बीजों की फराहमी से ज़राअत का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। इस साल सरसों की फसल उतर गई है और उसकी कटाई और थ्रेशिंग का अमल शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल सरसों की पैदावार बहुत अच्छी जा रही है। रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी की वजह से ये रेट किसानों को मिल रहा है, इससे किसान खुशहाल हो रहे हैं। इस साल 2021 में सरसों का बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं और जनाब इमरान खान के बहुत शुक्रगुजार है, जिनकी ज़राई पॉलिसी की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। सरसों की फसल की तरह काश्त की जाने वाली दीगर फसलें भी मुल्क में मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जरूरत इस अम्र की है कि काश्तकारों को वक्त पर सहूलियात मुयस्सर की जाएं और अजनास की खरीदारी के लिए काश्तकारों से बराह रास्त राब्ता करके मुकर्रर करदा कीमतों पर खरीदारी की जाए।
PTV न्यूज के लिए कराची से नवाब अली शाह। और माहौलियाती चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए बिलियन ट्री मंसूबे के तहत मुल्क भर में शजरकारी मुहिम जारी है। मुहिम के तहत घोटकी में भी 70,000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे बरकत अली। घोटकी के कच्चे और पक्के के इलाकों में हजारों एकड़ पर मुहित जंगलात पाए जाते हैं, जिनसे न सिर्फ मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए लकड़ी हासिल की जाती है, बल्कि ये जंगलात माहौल को साजगार बनाने समेत सैलाबों और तूफानों से बचाव के लिए ढाल भी हैं। आपका जो फ्लड है वो आएगा और इस हिसाब से और दूसरे तूफान हैं और इस किस्म के और गर्म हवाएं, ग्लोबल वार्मिंग आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर दरख्त होंगे, जंगलात होगा तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां वो खत्म होंगी। आपका बारिश भी वक्तन वक्तन होता रहेगा और इस हिसाब से जो लोकल बंदे हैं उनको जो है फ्रेश हवा मिलेगी और उसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां उसमें कमी आएंगी, वो बीमारियां खत्म होंगी। जंगलात की तोसी के लिए महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी आबादकारी के लिए 70,000 नए दरख्त लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इन दरख्तों की अफजाइश इंतहाई बेहतर अंदाज में की जा रही है। ये दरख्त ऐसे नहीं पलते, ये दरख्त जैसे अपने बच्चा पैदा होता है घर में ऐसे ही पलते हैं। इसकी निशोनमा ऐसे ही करनी पड़ती है, इसका पानी का ख्याल करना पड़ता है, इनका प्रोडक्शन करना पड़ता है। और ये जब ये इसको वफेडेंस आते हैं, जब काटते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। अदालती अहकामात के तहत हजारों एकड़ जमीन कब्जों से खाली कराने का अमल जारी है और खाली जमीनों पर जंगलात की आबादकारी के लिए खुसूसी हुकूमती तवज्जो की जरूरत है। बरकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, घोटकी। तलबा और तालबात को घर बैठे मयारी तालीम की फराहमी में वर्चुअल यूनिवर्सिटी अहम किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन, TV चैनल्स, इंटरनेट और दीगर डिजिटल ज़राए के जरिए तालीम की फराहमी बिला तातुल जारी है। इसी की डिटेल वर्दा सलीम से। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मिशन तलबा को इंतहाई सस्ती और आलमी मियार की तालीम फराहम करना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान अपने 4 टेलीविजन चैनल्स की नशरियात को इंटरनेट के जरिए मियारी तालीम तलबा को फराहम करने में पेश है। कोर्स रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो उसको नेट के जरिए, वेबसाइट के जरिए, यूट्यूब के जरिए और उसका स्टडी मटेरियल उसका प्रिंटेड फॉर्म में बना के हमारी ऑनलाइन बुक शॉप है, उसके जरिए मुल्क भर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने ही तलबा को नहीं बल्कि मुल्क की दीगर तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा को भी बेहतरीन निसाब फराहम करती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो इदारा है जिसने कोरोना वबा के दौरान भी तालीम की फराहमी को जारी रखा। स्कूल और यूनिवर्सिटी में ज्यादातर हम करीब नहीं बैठ सकते SOPs के थ्रू, तो इस वर्चुअल का सबसे बड़ा फायदा है कि हम घर बैठ के सारे जो लेक्चर हैं एक्सेस कर सकते हैं। कोविड के दौरान बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स इफेक्टेड हुए थे ना, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो लर्निंग थी, जो स्टूडेंट्स का सारा टीचर्स के साथ सारा लिंक था, वो बहुत अच्छा रहा है थ्रू आउट द पीरियड। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट DG स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से नौजवान, घरेलू खवातीन और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के तलबा और तालबात को घर बैठ के तालीम फराहम करने का एक अच्छा मौका फराहम कर रही है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई और वस्ती पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है, जबकि इस दौरान बाज़ मकामात पर यालाबाई और बलाई, वस्ती खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में